चीज़ें आप जिस तरह से अपने आंसर में प्रेजेंट करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करो, केस लॉज आप अंडरलाइन कर दो तो वो भी थोड़ा ठीक रहता है। तो आपके नोट्स में शॉर्ट हैंड में लिखिए, पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए और सरल भाषा में लिखिए। सो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप जो चीज़ें लिख रहे हो ना उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लुकिंग एट अ mirror एंड देन स्टार्ट सप्लीमेंटिंग दैट विद अ रेफरेंस बुक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। ये है सेकेंड एडिशन ऑफ टॉपर स्टॉक और आज टॉपर स्टॉक में हमारे साथ बात करने के लिए आई है अवनी व्यास, who is rank 5 in MPCJ examination, who got rank 5 in MPCJ examination. So I welcome you and I thank you for coming here and speaking to us. आज के इस टॉपर स्टॉक में हम वो सारे क्वेश्चन जानेंगे जो एक एस्पिरेंट के मन में होता है कि प्रिपरेशन करें कैसे, प्री करें, मेंस की करें, इंटरव्यू के लिए अलग करनी होती भी है या नहीं करनी होती, या फिर मेंस हो गया तो इंटरव्यू तो हो जाएगा, एवरीथिंग लाइक दैट। बट बिफोर वी डू दैट, Avni is a first generation lawyer of her family. So what made you think of doing law? First of all, hi everyone. कैसे सब ठीक हो? Yes? Okay. First generation lawyer, as ma'am said. So law was on my radar after 12th also. But उस समय I was really fascinated by psychology, so I went for psychology instead. So my father was the one who told me you should consider law because it's a good field. Once you know, you make your name in it. So after 12, I was like, no, I want to do psychology. So I set aside no. Then after psychology, I realized कि okay, अब क्या करना है ज़िंदगी में, क्योंकि वापस वही रास्ते में आ गए जो 12th के बाद था. So then I was considering bunch of options. MBA was one, law was one, UPSC was one, and very thankful that I started looking at law again because I was preparing for your legal reasoning that comes with law, and I was very fascinated by legal reasoning. I was like, okay, let's do this. This is very interesting. So that's how law came back on my radar. So after law, मतलब what all were the options while doing law? मतलब जब law कर रहे होते हो तभी you start figuring out what you want to do. पहले से कोई सोच के नहीं जाता लॉ स्कूल में कि मैं तो ये करके निकलूंगा या मैं तो वो करके निकलूंगा, वैसा नहीं होता है। आप जो सोचते हो वो भी चेंज होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करते हो, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आप जुडिशरी करोगे, फिर बाद में आपको लगता है यार कंपनी लॉ तो इतना इंटरेस्टिंग है, कॉर्पोरेट में जाया जाए। सो थिंग्स चेंज। सो व्हाट मेड यू थिंक ऑफ जुडिशरी एज अ करियर ऑप्शन? टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज यू डू इंटर्नशिप्स, राइट? सो लिटिगेशन का मैंने देखा, इंटर्नशिप क्या बिल्कुल नहीं जमा, नहीं पसंद आया। Then went for a law firm internship also, hated the work culture there, did not like it one bit. I was like, ये भी नहीं होगा हमसे. So then in my second year, I came across an article in which it was an MP High Court peon's son who had cracked the judiciary exams within 4 months or something like that. So I was like, oh, judiciary is also an option. So let's explore this. So then I started doing my research. I started looking into, okay, what exams do you need to give, or what additional things that you need to go for judiciary. And I realized you only need a law degree, to be very honest. So then I started looking into it further. And फिर अच्छा लगने लगा, seeing all the subjects, seeing what all the exam pattern is. I was like, let's go for judiciary because, like ma'am said, there's no lawyer in my family. So definitely there's no judge in my family also. I was like, okay, let me make my marks because all my family is filled with engineers. So I was like, there's definitely वो तो engineering से law तो काफी बड़ा वो है। और तो किया होगा। नहीं, they was terrible at math. So they were like, ना maths तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तो engineering में जाओ मत। So they never pressurized me into going for engineering or doing MBA because most of my cousins have done that only. They've done engineering, they've done MBA, then gone into finance. Like, no, finance तो भाई ऐसे नहीं आता finance का। उल्टी बात है वो। So जब आप लॉ स्कूल से निकल जाते हो एंड यू हैव मेड अप योर माइंड कि अच्छा मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, तो उसके बाद भी चैलेंजेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जुडिशरी करना है तो जुडिशरी कहाँ का करना है, किस स्टेट का एग्जाम दोगे? क्योंकि आप चाहो तो दे सकते हो 28 स्टेट का विद सभी स्टेट्स की, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप सभी स्टेट का दे दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन फिर चूज करना कि किस स्टेट का देना है, दैट इज ऑल्सो हरक्यूलियन टास्क। सो व्हाट ऑल स्टेट डिड यू चूज एंड why did you choose those states? So because I am from MP, I am originally from Bhopal, तो था कि भाई होम स्टेट का देना तो बनता ही है, होम स्टेट में देना ही है. So MP was definitely like number one on the list. Now along with MP, what had happened was at that point in time COVID hit हो गया था, so not a lot of vacancies were being published, notified, right?
सो जैसे जैसे स्टेट्स आ रहे थे, जैसे MP के शॉर्टली आफ्टर आई थिंक हरियाणा वॉज नोटिफाइड. सो माई डैड वॉज लाइक, गिव इट, what's the harm in it? There's no, you are in the place, you can afford to give it, you can afford to go to Haryana and give it, so why not? So I gave Haryana, and then Rajasthan bhi nikla, फिर Delhi bhi nikla finally. So I gave MP, Rajasthan, Haryana and Delhi. So at various stages I was knocked out of all of them. MP, this is my second attempt in MP which I cracked it. So जैसे एक्चुअली मेन फैक्टर वही था, जैसे नोटिफिकेशंस आ रही थी एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ओके विद MP आई कैन मैनेज दीज स्टेट्स, आई वेंट फॉर देम. एंड नाउ ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज इज एन इशू बिकॉज आई ओनली स्पीक हिंदी, आई डोंट हैव एनी अदर लैंग्वेज दैट वी स्पीक एट माई हाउस. सो तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आप ऑप्ट कर सकते हो उस मामले में. फिर ये एक चीज़ काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती है. फॉर एग्जांपल गुजरात में बहुत सारे लोग बैठ ही नहीं पाते क्योंकि गुजराती नहीं आती. महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि मराठी नहीं आती. तो ये जो स्टेट्स है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है जिसमें हिंदी आपको पूछा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. एंड थैंकफुली यहाँ पे वैकेंसीज आती है, अच्छी आती है. फॉर एग्जाम्पल MP हर साल नोटिफिकेशन करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द वैकेंसीज आर अबव 100 ओनली. हाँ, you know. सिमिलरली राजस्थान हर साल वैकेंसी निकालता है, दिल्ली हर साल निकालता है, हरियाणा निकालता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर. सो ये सारे स्टेट्स तो निकालते हैं. Haryana I think came up with 250 vacancies or something, so it was like 125 vacancies for general, which is a lot. So then yeah, so जब सोच लिया, स्टेट्स चूज कर लिए, so फिर हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? So initially when I started preparing, I was doing full self-study because I had my notes from college. So I relied on that and I was doing fully self-study. And at that point of time, lockdown लगा ही था, college भी बहुत धीमे धीमे चल रहा था, last semester था, no teacher was like, हाँ हम online ले लेंगे and all that. So I started studying on my own. So I picked up those subjects which I had done in my first semester, which I had forgotten completely. So for example, IPC, I did not remember a single word of IPC. So I started with those subjects. Mostly self-study किया. Then after my failure, which I faced in MP, the 2019 phase 2, I realized, okay, we need some external help now because this is not going to work out. So that's when I enrolled with Judiciary Code, and then self-study supplemented that with the lectures in those areas where I found myself lacking. I started building up my notes, started revising them consistently because that is the key. Revision is your key. Revision आप नहीं छोड़ सकते हो, वो आपको करना ही पड़ेगा. And slowly फिर उससे चीज़ें समझ में आ जाती है, लॉ समझ में आ जाता है. एंड जुडिशरी कोर्ट में तो हमारा एम ही है कि आपको लॉ समझ में आए, राइट? सो हम तो अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं आपको एक एक शब्द समझाने में. हाउ एवर अगर उस चीज़ का रिविजन नहीं हो तो आप चीज़ें भूल जाते हो और आप भूलने लगते हो. और एक बार आप भूलने लग गए तो फिर आपको सब्जेक्ट से डर लगने लगता है. अब अगर सब्जेक्ट से डर लगने लगा तो अब आपका साइकोलॉजी ऐसे वर्क करेगा कि जो सब्जेक्ट नहीं आता है वो सब्जेक्ट हम नहीं उठाएंगे. हम वो सब्जेक्ट उठाएंगे जो हमें आता है, जो बनता है, उसी के 4 रिवीजन कर लेंगे, उसमें पकड़ कर लेंगे. लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो नहीं बन रहे हैं, नहीं आते हैं, जो एक पॉइंट पे बनते भी थे, उनको हम रिवाइज ही नहीं करते. वी स्टार्ट फॉरगेटिंग दो सब्जेक्ट्स एंड दैट इज वेयर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं. कंसिस्टेंटली रिवीजन अगर करते रहोगे, एक सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट, 1 महीने बाद उसको फिर से उठा के देख लो, फिर उठा के देख लो, कुछ MCQ सॉल्व कर लो, बीच में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. इफ़ यू कीप प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है. सो लास्ट टॉपर स्टॉक में ध्रुतिका भी थी, ध्रुतिका, स्कृति, मानसी, ये सब लोग आप ही के बैच में, आप सभी लोग एक ही बैच में हो गए. सो ध्रुतिका ने एक चीज़ कही थी कि बैरक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उसने ये कहा था कि जब आप एक ही चीज़ को इतनी बार पढ़ते हो, इतनी अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, तो वो चीज़ आपको मन में बैठ जाती है. इसके ऊपर कई लोगों ने कहा कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे तो वो तो रटना ही है. क्या ऐसा है? नहीं, वो क्या होता है कि मैं कैसे समझा, वो एक ऐसा ब्रेन में आपको एक मैप बन जाता है उस सेक्शन को रिगार्डिंग कि अच्छा वो सेक्शन मैंने पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन में एक वो वर्ड फ्लैश करेगा जो प्रॉब्ली वो कीवर्ड है उस सेक्शन का. सो दैट इज द स्टेज, व्हेन यू रीच दैट स्टेज, दैट इज लाइक ओके मैंने बहुत सॉलिड रिविजन किया है अभी, क्योंकि यू नीड टू रीच दैट स्टेज. एग्जाम टाइम में यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव 3 hours. 3 hours go like that. You don't get a time to even rest your eyes or rest your hand away. Your hand will cramp, your eyes will hurt, क्योंकि वो आपके पास समय नहीं है. You have to write a lot. So when you keep revising, these keywords will keep flashing in your head, and when these keywords keep flashing in your head, आप easily answer लिख लेते हो. And obviously revision आपको करना ही पड़ेगा.
आई रिमेंबर मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे क्या कर रहे हो, मैंने कहा CRPC पढ़ो, बोलते तो 1000 बार CRPC पढ़ चुकी है, अभी क्यों पढ़ रही हो उसको बारे, बिकॉज यू हैव टू डू इट। CRPC अभी मतलब CRPC इज एन एग्जाम्पल, whereas you look at all the subjects, they are vast in their own nature, and you have concepts behind those provisions that has been given under law. तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत करनी, मतलब दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ये करना ही पड़ेगा, इसमें यू कैन नॉट गो अराउंड इट। एग्जैक्टली। जुडिशरी अगर यूपीएससी वगैरह एग्जाम से कंपेयर करो तो शायद ईजियर है, लेकिन इट ऑल्सो टेक्स अप अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऐसा नहीं है कि आसानी से निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि यार कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे ही हो गया मेरा सिलेक्शन। नोबडी विल टेल यू दैट। लाइट तो नहीं है सर, एग्ज़ाम लाइट नहीं है, इसको आप लाइटली भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन के लिए एग्ज़ाम है, थोड़ी एफर्ट तो आपको डालनी पड़ेगी पोजीशन पे आने के लिए। Agreed. थोड़ी नहीं, काफ़ी डालने पड़ते हैं, बट ठीक है। It's I mean, you should actually, in hindsight, I can say this now because I am successful in it, that you should learn how to enjoy it, because there will be a lot of downfalls in it, but आप अगर वो downfall को पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, then it becomes very difficult for you. So you have to learn how to overcome those pitfalls. You have to learn कि okay नहीं ठीक है, नहीं हुआ इस बार कोई नहीं, we have we are fortunate enough that we have the resources, okay, that we can study on it, and हम लोग के पास वो है, cushioning है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी सपोर्ट कर रहा है। If that is the case with you, then well, there is nothing stopping you in that sense. So I think that's the biggest takeaway. True. सो जुडिशरी की तैयारी जब आप करते हो ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये कि ये तैयारी बहुत ही डेडिकेशन मांगती है आपसे। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो या फिर कॉलेज के साथ कर रहे हो जुडिशरी की तैयारी, तब दिस विल टेक यू टू एक्सट्रीम्स। आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करने लगोगे। आपके कॉलेज में आप लोग सोच रहे होगे, अभी तो कॉलेज में जब हम जाते हैं तब तो यही सोच के जाते हैं ना, और ये फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, फिएस्टास भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, बट you will have to miss out on a lot of those things because you're preparing. But in the end, I think it's all worth it. It's all definitely. I mean, the happiness that I'm getting now because of my success, it's unparalleled. So ठीक है, अब मेरे को लगता है दिमाग में, अच्छा अपन ने वो हार्ट से सुनी, एक आधी पार्टी में नहीं गए, एक आधी दोस्त की शादी में नहीं गए, चलो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So but that's the thing, I can say this right now because I'm on the other side of the thing, so I can totally understand your apprehensions also कि अरे यार कैसे ट्रिप मिस कर दे, सब दोस्त जा रहे हैं, कैसे ना जाए हम, बट करना पड़ेगा थोड़ा, क्या करें, सैक्रिफाइस थोड़ा एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ते हैं, थोड़ा डेडिकेशन तो दिखाना पड़ता है। बिना डेडिकेशन के तो वैसे भी कोई भी चीज़ आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो अगर डेडिकेशन है, अगर मोटिवेशन है, पैशन है, तो फिर जो छोटी छोटी चीज़ें आप मिस आउट करोगे ना, उन सारी चीज़ों को आप आगे जाके कॉम्पनसेट कर सकते हो। आप हर चीज़ कॉम्पनसेट करी जा सकती है, लेकिन वो क्रूशल टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे फोकस रहने की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं निकला तो यू टेंड टू गिव अप। या हम सभी का मन करता है अरे यार फिर से देना पड़ेगा, क्या प्रीलिम्स फिर से शुरू करेंगे। That's the thing, because it's 3 stages. So even if you get knocked out at the Thursday, जो लगा रहे हैं वापस back to square one, कैसे करेंगे वापस प्रीलिम्स के लिए, कैसे तैयारी करें, it becomes a little challenging, but हाँ, you just have to pick yourself up. उसके अलावा मतलब I cannot sugarcoat it in any way, because the harsh reality of it, और मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। So जैसे प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह करी, मेंस की किस तरह करी, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो। तो प्रीलिम्स और मेंस की इतनी कोई सेपरेटेड आपकी डेडिकेटेड तैयारी नहीं होती है, यू हैव टू डू देम साइमल्टेनियसली, एंड एज मैम एंड आई वर ऑल्सो डिस्कसिंग, वो एक्चुअली आपका बनी जाती है, बिकॉज आप बैराक पढ़ते हो, आपको बैराक की लैंग्वेज कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो तो नहीं समझ में आता है, सो यू विल पिक अप अ रेफरेंस बुक एंड स्टार्ट रेफरिंग, तो आपकी मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। एंड आई वर्ड हाउ आई डिड इट, एंड मैं ये एक्चुअली सजेस्ट नहीं करूँगी, तो मैंने जब फर्स्ट रीडिंग करी थी मैंने सिर्फ बैराक्स की करी थी और मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, नो फर्स्ट आई नीड टू सी व्हाट द बैराक इज सेइंग, बट इन हाइंडसाइट आई वुड डेफिनेटली से कि स्टार्ट लुकिंग एट अ बैराक एंड देन स्टार्ट सप्लीमेंटिंग दैट विद अ रेफरेंस बुक, वॉट एवर बुक यू चूज दैट्स अप टू यू। ऐसा नहीं है कि भीड़ के पीछे चले जा रहे हैं सब, अगर एक बुक रेफर करें, नहीं, आपको देखना है कि बुक की लैंग्वेज कैसी है, वेदर द लैंग्वेज इज समथिंग दैट इज फॉर यू टू इजी टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन यू डू दैट, आप ऑटोमेटिकली आपके नोट्स बनाते जाएंगे, आपकी साइमल्टेनियसली प्रेपरेशन होती है प्री और मेंस। ये बात अलग है कि प्री के पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड एमपी का देखा जाए तो आपको कंप्यूटर्स भी आता है और जीके भी आता है,
और इंग्लिश भी आता है, तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, बट दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, ऐसा कुछ है नहीं। वही कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ प्री सेंट्रिक पढ़ रहे हो, प्री सेंट्रिक कोई पढ़ाई होती ही नहीं है। अनदर थिंग इज कि अगर आप सोचो कि नहीं मैं अभी तो प्री की करूँगा, फिर जब प्री क्लियर होगा तो मैं मेन्स की नहीं होगा, क्योंकि प्री और मेन्स के बीच में आपके पास आई थिंक मैक्स एमपी में 2.5-3 मंथ्स मिल गया, अगर पोस्टपोन हो जाए तो आपकी किस्मत, बट उसमें भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बट 3 months इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर मेन्स, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट लॉ, आपको एसेज भी करने हैं, तो यू हैव टू बी अपडेटेड विद सोशल इशूज, लीगल इशूज़, करंट लीगल इशूज़। आपको जजमेंट राइटिंग है विच इज़ अनदर ऑर्डियल इन इटसेल्फ, आपका ट्रांसलेशंस हैं जिस विच रिक्वायर्स डेडिकेटेड प्रैक्टिस। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट? जैसे लॉ की तैयारी तो सभी कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स को भी समझ में आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ना है, 2-4 आंसर राइटिंग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये तरीका है। बट जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऐसे, इसकी तैयारी फिर कैसे हुई? So, first I'll start with translation because a lot of people have doubts with translation. क्योंकि मेरे जैसे मोस्टली केसेस होते हैं 10th के बाद हिंदी के टेक्स्ट बुक आज तक देखी भी नहीं है, मैंने भी यही किया था। तो एक तो सबसे पहली चीज़ एक्चुअली आपकी मैंने सलाह ली थी एक क्लास में, एक MM जोशी की ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन की बुक आता है, वो अगर आपको खरीदना आप खरीद लीजिए, उसमें दे गिव यू वेरियस पैराग्राफ्स टू प्रैक्टिस, सो दैट इज़ वन वे आई डिड। सेकेंड इज़ आपको लीगल ग्लॉसरी बनानी पड़ेगी, सर्टन लीगल टर्मिनोलॉजीज आपको पता ही होनी चाहिए, अक्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेंट को क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ को क्या बोलते हैं, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। और लीगल ग्लॉसरी के अलावा आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि स्टार्ट रीडिंग अ हिंदी न्यूज़पेपर इफ हिंदी इज़ एन इशू फॉर यू, लाइक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इज़ एन इशू फॉर यू, स्टार्ट रीडिंग अ हिंदी न्यूज़पेपर, क्योंकि उससे आपकी सामान्य हिंदी भी बहुत बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ती है। तो वो दैट इज़ अ प्रैक्टिस आई फॉलोड एवरी डे इन द मॉर्निंग अराउंड 5-10 minutes आई यूज्ड टू रीड अ हिंदी न्यूज़पेपर, क्योंकि लीगल ग्लॉसरी तो आप रट लेते हो लेकिन आप फिर सामान्य हिंदी भूल जाते हो, ये सब क्या है हिंदी में, वो तो याद ही नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो याद है कि न्यूज़पेपर वर्ड आया था और मैं सारे लीगल वर्ड्स मुझे सब आना थे, अब न्यूज़पेपर की हिंदी क्या बोलोगे। फिर आई थिंक एक और शायद मेरे साथ कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलूँ, कॉन्सेप्ट हिंदी में क्या बोले, तो ये सामान्य हिंदी में भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आपका बेसिक जब आप ट्रांसलेट करोगे तो बेसिक हिंदी तो आना ज़रूरी है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन तो आना ही चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। मैंने जब स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन करती थी तब मैं क्या करती थी कि इतना बेकार ट्रांसलेशन करती थी मैं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखती रहती थी, जहाँ एस लिखा है वहाँ ए लिख देती थी। हाँ, वो आते ही आपके दिमाग में। और फिर मैं अपने पापा से चेक कर आती थी, मेरे पापा की लीगल हिंदी और हिंदी दोनों ही बहुत अच्छी है, पापा बोलते थे बेटा लिखा टेक्निकली सब ठीक है वो होता ही है। सो एंड अगर आपका इंग्लिश इशू है तो देन द सेम थिंग वुड अप्लाई फॉर इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टार्ट क्रिएटिंग अ लीगल ग्लॉसरी। और लीगल ग्लॉसरी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्लॉट वाली बैराक की खरीदने की ज़रूरत है, मैंने तो ऑनलाइन PDFs आपको ईजिली सारे मेन बैराक्स के आपको हिंदी बैराक में मिल जाता है, तो मैं तो वहाँ से रेफर करती थी जो टिपिकल जैसे क्रिमिनल लॉ में भाई ऑफेंस को हिंदी में क्या नाम है उसका ऑफेंस का, वो आपको पता होना चाहिए, तो ये सब मैंने किया। Now coming to essays, JG had already given a list of potential topics that had come, but I was also keeping an eye on current legal affairs, क्योंकि उस समय sedition का बहुत था, इस समय sedition का बहुत था, hate speech का बहुत था, marital rape तो आ ही गया एग्जाम में, तो these are the topics you need to look out for। जो major legal current legal developments जो हो रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि उस पर ही ऐसे बनने की संभावना बहुत होती है। सोशल ऐसे का थोड़ा वो होता है कि दे कैन आस्क यू फ्रॉम सिंपलेस्ट टॉपिक्स टू समथिंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारे इसमें आ गया था सेव वाटर और स्वच्छ भारत अभियान ना, नोबडी एक्सपेक्टेड कि यू वुड हैव समथिंग कॉल्ड एज वाटर हमें सेव करना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू राइट इन लाइक 5th standard 6th standard, बट दे आस्क्ड यू। सो उसके लिए है कि आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए, सोशल टॉपिक्स ऑलरेडी आपके तो जे तो दे ही देंगे, आपको टॉपिक्स दे ही देते हैं, मेरे को भी थे। तो ये ऐसे का तो वही है कि आप नोट्स बनाइए, जैसे मैं एक सुबह रिसर्च करती थी, जो भी एक टॉपिक पकड़ लिया मैंने उस दिन का, एंड आई शुड रिसर्च ऑन इट, एंड ऐसे मैंने डेडिकेटेड प्रैक्टिस इसलिए मैंने कही क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पर था, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी। बट आपको अगर लगता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है,
then definitely maintain a notebook, write down all the topics that could possibly come, और उसमें essays लिखते रहिए, because that will help you. ये वाली चीज़ तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आप कितना अच्छा ऐसे लिख लेते हो सकता है कि आप शायद अपने कॉलेज में डिबेट इतनी करते हो कि आपको हर चीज़ के बारे में पता है, आपको पता है कि किस तरह लिखना होता है, लेकिन फिर भी इन सब्जेक्ट्स की तैयारी तो करनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड शायद यही गेम चेंजर बन जाते हैं. As I'll tell you, in my mains, I scored the highest in my essay paper. I scored 70 out of 100 in my essay paper. And that's the highest marks that I've gotten in all papers. Yeah. So this is definitely a game changer paper. ये या तो आपका सिलेक्शन करवाएगा या आपका सिलेक्शन रुकवाएगा, ये डेफिनेटली है. इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. 2019 फेज 2 में मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया था, प्रॉपरली अंडर एस्टिमेट किया था मैंने इसको, एंड इससे मेरी बैंक जाई थी 2019 फेज 2 में. बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे मेरे इसमें. तो ये होता ही है कि आप इतना फोकस लॉ पे ही करने लगते हो, क्योंकि लॉ तो आपको आता है ना, वो ना आपका कंफर्ट जोन है. तो लॉ पे इतना फोकस कि फिर ना जजमेंट राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, ना ऐसे की कर रहे हैं, ना ट्रांसलेशन की कर रहे हैं, जबकि ट्रांसलेशन इज सो स्कोरिंग. ट्रांसलेशन वेरी स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है. आपने उस लाइन, उस शब्द को अगर ठीक से लिख भी दिया है, उसका मीनिंग कन्वे भी कर दिया, एग्जैक्टली हिंदी में नहीं लिखा है, मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट ही लिख दिया है. हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट ही लिखा था हिंदी में. मैंने वही किया था. तो आई डोंट नो मैं गॉट मार्क्स, मैंने RTI फाइल नहीं करी है, बट पेपर के मार्क्स देखते हुए लगता रहा है कि ठीक है मार्क्स मिले ही हैं. सो डेफिनेटली. और जजमेंट राइटिंग का तो आपको पहले लॉ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज जजमेंट राइटिंग इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ दैट यू हैव बीन स्टडीइंग. एंड जजमेंट राइटिंग में स्पेशली आपका जो क्रिमिनल एक तो लेंदी आता है. इस बार एक्चुअली MP का वाज मॉडरेट, वाज लाइक इफ यू हैड करेक्टली आइडेंटिफाइड द प्रोविजन दैट अप्लाइज देन इट वाज अ मॉडरेट लेंथ. बट सिविल थोड़ा घुमावदार आ गया था इस बार, बिकॉज दे एडेड अ सर्टेन पोर्शन इन लिमिटेशन एक्ट, उसी पे ही इन्होंने जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन बना दिया. सो जजमेंट राइटिंग के लिए एंड इश्यूज फ्रेमिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग के लिए देयर इज सॉलिडिफाइंग योर लॉ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसिंग. ये दो ही चीज़ हैं. आपको JG में वो क्लासेस बताएंगे, आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी बताएंगे वो कैसे क्या करना है, बिकॉज फॉर्मेट के भी मार्क्स तो होते ही हैं, थोड़े बहुत होते ही हैं, वो आपको करेक्टली करना ही पड़ेगा. बट या जजमेंट राइटिंग इज नथिंग बट प्रैक्टिस, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा. एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग जजमेंट राइटिंग. माई फेवरेट पेपर आउट ऑफ 4 was actually judgment writing, because once you're very clear with your concepts, then judgment writing becomes very easy for you. Because all you have to do is apply it and write it. So that way judgment writing to is practice. जजमेंट राइटिंग आर्ट नहीं है, एक्वायर्ड स्किल ही है. कोई भी वैसा नहीं होता कि अरे मुझे तो बचपन से आता है, ये हो जाता है. वो हो सकता है कि शायद आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग है तो आपका जजमेंट राइटिंग बेहतर है, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हो तब 2 जजमेंट लिखना, 2 एक इशू बनाना, एक चार्ज फ्रेम करना, वो अपने आप में ही हरक्यूलियन टास्क हो जाता है. बहुत होता है. और मैं कह रही हूँ ना, जो 3 घंटे आपके मिलेंगे ना, जो 2 दिन का ऑडियल है, आप 6 घंटा टोटल लिखो, वो 6 घंटा कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वो 6 घंटा कहाँ जाएंगे. बिकॉज आप पहले तो आपका जो लॉ पेपर होना था उसके थोड़ी लास्ट टाइम रिविजन करते हो, फिर जाते हो लंच खाते हो, उतने सेकेंड पेपर का टाइम हो जाता है, फिर वही सेम चीज़ आप सेकेंड डे रिपीट करते हो, तो वो आपका समय कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. सो थोड़ा उसको ये 2 दिन इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं. 2 दिन MP में 2 दिन होता है पेपर, 4 पेपर्स होते हैं टोटल, तो एक दिन में आपको 6 घंटा लिखना होता है, टोटल 7 hours यू हैव टू स्पेंड देयर. तो वो 7 घंटे के बाद आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एंड फिर भी आपको पता है कि अगले दिन तो पेपर है. हाँ, उसकी तैयारी कर. I mean, writing this 3 hour papers, I had developed a very strong callus on my middle finger. Although it was not, जा नहीं रहा है. it did not go away for 1 month because I could still feel like remnants of it. But वो 1 महीना तक solid मेरा वो callus बना हुआ था, because you just have to write. There's nothing but writing in those papers. Exactly, and ये एग्जाम वैसा नहीं है ना कि पास होना है, फेल होना है. सिलेक्शन इसी पे बेस्ड है, मेंस एग्जामिनेशन पे सिलेक्शन बेस्ड है. मैं ये कहूँगी कि मेंस इज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली इन योर हैंड्स. तो इसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं, इसमें एक पूरी कसर लगा दीजिए, बिकॉज दिस इज, अगर आप इसमें हाई स्कोर करते हैं, इंटरव्यू आपका चलो ना भी अच्छा गए, बट इफ यू स्कोर अबव 20 इन इंटरव्यू ऑल्सो, योर चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू द मेरिट लिस्ट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. क्योंकि मेंस टोटली आपके हाथ में होता है, उसको आप कितने अच्छे से अपने आंसर्स ब्यूटिफुली राइट करके प्रेजेंट कर रहे हैं, वो दैट रियली मैटर्स. बिकॉज आपको एम ये है कि मेरा पेपर में कितना सरल बना सकता हूँ पढ़ने के लिए और एग्जामिनर को उस पर मार्क्स देने के लिए. बिकॉज
क्यों आप किसी को इतना ऑर्डियल में रखोगे, उसका मूड वैसे ही खराब हो जाएगा, आपका पेपर खाया तो वैसे ही मार्क्स से देगा आपको। मेरा लॉजिक मैंने यही लगाया था। हाँ, ये वाली चीज़ तो मैं भी सभी को कहती हूँ। हाँ, जितना आसान आप इवैल्यूएटर का काम बना रहे हो, अब देखो आसान 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आप कुछ नहीं लिखो, उसका काम बहुत आसान है, जीरो देता है उसे और आगे बढ़ता है, वो वाला आसान नहीं। वो थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव काम हो गया, उससे कुछ होगा नहीं। बट चीज़ें आप जिस तरह से अपने आंसर में प्रेजेंट करते हो वो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ नहीं करना है। अंडरलाइनिंग का स्टूडेंट्स को बोलो तो वो सारी चीज़ें अंडरलाइन कर देते हैं। नहीं, कीवर्ड्स इज सफिशिएंट। आप जो वेराक ने प्रोविजन दिए हैं उसमें सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे आपका रेस्ट डेडिकेट लगा हुआ है तो मैटर सब्सटेंट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, वो आप अंडरलाइन करना ही पड़ेगा आपको। दोज आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करो, केस लॉज आप अंडरलाइन कर दो तो वो भी थोड़ा ठीक रहता है। एंड स्पीकिंग ऑफ केस लॉज ऑल्सो, ऐसा नहीं कि पूरे आंसर्स में बस केस लॉज ही भरना है और उनको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, यू हैव टू सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट। एंड मैं एक्चुअली यही फिलोसफी फॉलो करती थी कि 8 मार्क्स के लिए 2 केस लॉज आर मैक्स एंड 4 मार्क्स के लिए 1 केस लॉ इज सफिशिएंट। बट दिस ऑलवेज डज नॉट अप्लाई स्पेशली इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि वो पूरा ही केस लॉ से डेवलप हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में राइट टू डाई वेदर इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, तो वो पूरा ही केस लॉ अवार्ड है। तो वो 4 मार्क्स का था, बट आई हैव रिटन 5 केस लॉज ऑन इट। सो अगेन मेन्स इज ऑल्सो अबाउट एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जा रहा है। So you have to read the question paper completely. ऐसा I think we were discussing कि ऐसा नहीं कि entire declaration पढ़ दिया और पूरा लिख दिया उसके ऊपर, नहीं. You have to see what the question is asking and accordingly you have to frame your answer first in your head and then put it down on the paper. क्योंकि that's what matters. क्योंकि जैसे डाइंग डिक्लेरेशन वाले में बताई थी, तो डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड पढ़ लिया, अब इसके बारे में तो बहुत कुछ पता है। इतना पता है कि आप आज की डेट में भी 4-5 पन्ने बन के आ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा क्या था, दैट FIR डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है नहीं, और तुम मुझे बता रहे हो कि FIR ईयर से का एक्सेप्शन है कि वही। सो दैट्स द थिंग, वो क्वेश्चन पेपर को भले आप शुरू के 5 मिनट लीजिए क्वेश्चन पेपर को थॉरली पढ़ने के लिए, और या बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, और वो टाइम मिलता है आपको। हाँ, वो टाइम मिलता है, बट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार पढ़िए, मैक्स 3 बार उसको पढ़ लीजिए एंड try to understand what the question is asking you, because ultimately आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। आप अगर आंसर कुछ और लिख दोगे आपके मार्क्स वहीं कट हो रहे हैं, वो आपको मार्क्स कम नहीं निकाले वहाँ से। ट्रू, तो दैट इज अनदर थिंग अबाउट मी। नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू। ओ गॉड, कैसा था एक्सपीरियंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? हाँ, so for me I think I would say interview personally was a very challenging, the most challenging. Prelims and mains were still fine for me, but interview, the thing was, what was happening was I was panicking, and because I was panicking I was forgetting everything. So I till this day I'm very embarrassed to appear in front of Saurav sir and Karav sir, because my mock with them was so bad, it was so bad. So I was just hoping I don't run into them today because I was very embarrassed. तो इंटरव्यू के लिए एक तो पैनिक नहीं होना है। Another mistake I made was after giving mains, I was very tired. I was saturated. So I stopped studying after mains. This mistake, please don't make. You have to keep revising. So keep revising your concepts. So that's why in your legal position, you're very strong. क्योंकि आपसे लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा इंटरव्यू आपका लॉ पे ही बेस्ड हो। They can ask you personality based questions as well. So मेरा was the latter. They asked me personality based questions more. And more specifically, they grilled me on the fact that you don't have any work experience. So you're a fresher, and how are you better than a candidate जिसने let's say litigation किया है 1-2 साल के लिए, and then they have come for, they are more familiar with court procedures, they are more familiar with what happens in the court. So how are you better than how are you better than that candidate? तो somehow मेरा sixth sense से ही already कर लिया था कि ये इसमें मेरे को पूछेंगे. So I had prepared myself on this. So my interview was largely on that, and they asked law questions a little bit here and there. But the thing was that my interview, unfortunately, I was one of those candidates to 30 candidates a day में फंसता है, and I was the second last candidate of that day. So that is, I was so tired after that. मैं जी सुबह 8 बजे की पहुंची थी हाई कोर्ट, मेरा इंटरव्यू शाम के 5 बजे हुआ था। तो ये एक और चीज़ आपको, you should be aware of this, that this can happen to you also. So you have to be very mentally strong. That okay, I'm going to spend 8+ hours in the high court premises looking at other candidates. And so ये
एस्पेक्ट आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ है कि जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, आपको आता है, मे बी ऑब्वियसली नॉट मोर देन व्हाट द जज ऑनरेबल जजेस नो, but you know you have studied and be confident on your preparation, because if you're not, they can see right through it. They will start cross questioning you, they will start asking you about things which you would definitely not know, but then उनको ये check करना है कि आप panic हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, because their aim is to create pressure on you, and the moment they create pressure on you, they will try to see कि okay whether this person can handle the pressure or whether they will succumb to the pressure. So ये सब चीज़ें हैं interview के लिए। तो I would just say give mocks, they're very important. Start giving mock interviews. मैंने self talk technique भी follow करी थी, because I would frame a question in my head and then I would answer it by looking into the mirror. So basically that's what I did. What we suggest इंटरव्यू के लिए इसका हम एक पहले तो हम एक ओरिएंटेशन देते हैं कि क्या करना होता है, किस तरह से बैठना है, कैसे जाना है रूम के अंदर, कैसे एंटर करोगे, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद भी वी फील कि 2 मॉक इंटरव्यू के बाद भी कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, सो व्हाट वी सजेस्ट इज कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लो और ये क्वेश्चन अपने घर में किसी को भी पकड़ा दो और कभी भी उनसे बोलो कि रैंडमली तुमसे क्वेश्चन पूछे। तुम टीवी देख रहे हो, पॉज करो टीवी और फिर पूछो। तो इतना रैंडमली कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना, तो आपको वो हमेशा अपने टोस पे रहने की आदत हो जाएगी कि अच्छा ये कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप इतना तेज सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, वो चीज़ आप प्रैक्टिस करने लगते हो। Another thing is they also check you in the sense that they'll ask you a question, you start answering it, and they will not let you finish, and they'll ask another question. So वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि अरे यार मेरे को तो आंसर ही देने नहीं दे रहे हैं, तो मैं कैसे अपना पॉइंट कैसे क्रॉस करूँ। They will definitely, they did that with me. They did that with me 2-3 times. So I was like, okay, it's okay, calm down. Because ultimately I have to put my best foot forward there and I cannot show my frustration there. So, क्योंकि ये वाला ये तो वैसी चीज़ है जो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे, आप जज बनने के बाद भी वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रेशर में कैसे काम करते हो। क्योंकि जुडिशरी इज करियर जहाँ पे बहुत प्रेशर होगा, चीज़ों को लेके प्रेशर होगा, केसेस जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर होगा, इतनी जो पेंडेंसी अब आपको आपके कोर्ट में इनहेरिट करोगे आपको वो केसेस सॉल्व करने का प्रेशर, जो नए आ रहे हैं उन्हें करने का, तो उस प्रेशर में काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ तो उन्हें चेक करनी ही पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू को ही खत्म कर देना चाहिए, बहुत सब्जेक्टिव होता है, बहुत आर्बिट्रेरी होता है। no, I think that's necessary though. एग्जैक्टली कि मेंस एग्जामिनेशन किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा है लेकिन अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है, वो पर्सन ही ऐसा है जो छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, या फिर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी उसको डिप्रेशन हो जाता है कि अरे यार मुझे तो कुछ नहीं पड़ रहा। आप ऐसे कैंडिडेट को इस सिस्टम में कैसे लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये सर्विसेज है। Correct. No. Another thing that I had in my mind was, oh my god, this completely slipped my mind. I'm so sorry. I mean, I remember that topic I didn't talk about it. Was it related to interview? Yeah, it was, but it completely just went up in my mind. So how did you tackle that question? कि work ex नहीं है तो how are you a better candidate that? I went to the root of the cause saying that the conditions for the survey do not require work experience. So I tackled it that way. I said that since that is there, I'm also an equally eligible candidate as compared to a person who has, let's say, litigation experience. So I went to the root of the cause and I said, like, you're only allowing me to give the exam, so why did I not give the exam? So that was the thing. हाँ, that's a very lawyer way to go. तो hunting law तो ये कहता है. Yeah. So the thing I remember now is whatever answer you give, don't backtrack on it, because they will try to backtrack you on it. So there's this one thing when they asked me that suppose you don't qualify this examination, will you then go get litigation experience and then come back? And by the point of time, I was like, no, sir, my aim is judiciary, so I'll go. So in hindsight, I was thinking, was I too rude? Maybe I should have considered what the honorable judge was saying. Then I realized no, because if I would have said at that point of time, yes, sir, you're right, I should go get some experience and then come back, they'd be like, this person's easily influential, they can be easily influenced. There is no backbone in their words, whatever they say. Also कि ठीक है, फिर यही कैंडिडेट हमें शायद और ज़्यादा एक्सपीरियंस होके मिल जाएगी, वो बाद में भी मिल जाएगी, अभी भी तो मिल रही है लेकिन बाद में भी मिल जाएगी. But in fact, I'm so friendly, I have a chance to. But in my head, I was thinking, no, I should not back off
This worked for me, so I'm not sure whether this was the. बट पता है बोलने के तरीके पे भी बहुत फर्क पड़ता है. जैसे कि अगर यही क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपने आंसर जब किया होगा तो इस तरह से नहीं, that's not. I'm very much paraphrasing what I. हाँ एग्जैक्टली कि मतलब हम इस तरह आंसर नहीं करेंगे वहाँ पे कि नहीं मैं तो अभी दूंगी. I just put it across very assertively and very politely. And that's something you learn in the work interviews only. कि किस तरह से you take your stand as well as be polite, be humble, be very pleasing. Right. कि अब मना भी कर रहे हो तो your lordship. And one more Where you thing, buy- whatever you've written in your form, know it completely. Because they asked you for hobbies and stuff. So hobbies, if you, let's say I wrote about reading and swimming, some people wrote about cooking and stuff. They can ask you very much random questions on it. One candidate was asked कि मलाई कोफ्ता की recipe कैसे बनी? I know, right? And पता है we conducted an interview. हम लोगों ने एक mock interview conduct किया था and it's very popular on YouTube. तो उसमें ना ये चीज़ें मलाई बनाने की recipe. हाँ एग्जैक्टली. सो उसमें हम लोगों ने उसमें वो आया है कमेंट्स आए कि अरे इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते हैं They ask you. I think the second candidate of the day went and she came out and she was looking very distraught. So we asked her what happened. She's like, I wrote cooking and they asked me मलाई कोफ्ता की recipe क्या होती है. She was completely blank on it. So she felt, wow, my interview went very bad. I don't know what happened inside, but सो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. आप जो चीज़ें लिख रहे हो ना उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है. आप लिख दो बेकिंग पसंद है, वो पूछेंगे ब्रेड की कैसे बनता है. they asked me the meaning of my name. So my name means earth. So then they asked me धरती की विशेषताएं बताइए अब. Okay, ये तो है इसलिए वो तो ये तो सिलेबस में नहीं right. They can ask her. तो पेरेंट्स ने निकाया, पेरेंट्स से पूछो. The only planet that is hospitable for humans. It is very hot at the center. That's very strong or something. I thought I don't know. So at that point of time, it's very quick thinking. You have to think on your feet because they can ask you anything under the sun and you have to be prepared for it. ट्रू क्योंकि वो क्वेश्चन इतने रैंडमली स्विच होते हैं कि वन पॉइंट पे आपसे आपके नाम का मतलब पूछ रहे हैं. सेकेंड थिंग दे कैन आस्क यू अबाउट रेसिड्यू काटा एंड देन फिर उसके बाद की हॉबीज में रीडिंग क्या पढ़ा है. तो तुमने लास्ट कौन सी बुक पढ़ी थी? ऐसा नहीं कि टॉपिक जाएंगे, नहीं. वो कि पहले चार पैराग्राफ फिर नौ ऐसा they can switch you back and forth like crazy. एंड यही आई थिंक यही टेस्ट है. This is the test that you have to pass. This is what you have. It's a pressure test. To be very frank, it's a pressure test. कितना आप pressure अच्छे से handle कर पा रहे हो, that's what they're testing. And they're testing what your personality is basically, whether you're fit for the service or not. Because like ma'am said, law is and one case, your personality also matters. So they also saw that my father was retired from State Bank of India. So they pointed out this fact that, oh, so you're used to traveling moving from place to place. I was like, yes, so. So this is also something which played in your favor. Yes, exactly. So I remember जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो उस समय जो मुझसे पहले लोग गए थे उसमें से there was this guy who was preparing for judiciary for 5 years and the judges grilled him on that कि तुम 5 साल से सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, तो कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिपरेशन तो ठीक है लेकिन तुम कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not doing anything? अब वो ये भी नहीं कह सकता कि नहीं वी आर सो प्रिविलेज्ड कि करें, वी आर कंफर्टेबल, हमें जरूरत नहीं है. Right. Thankfully you didn't ask me that question. But yeah, I mean, I think to conclude, just prepare about everything that you possibly can. That's the only thing. Yeah. So how is life changed after the result? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? We तो majorly after the result is that I'm very laid back in life now. I mean, because it's a very big weight on our shoulders that's just been lifted off. Because 2 years we've been consistently preparing. And like I told you that after my mains I had saturated. I had very much hit like the lowest point. I was like, अब मुझसे और ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा. So that's why I left it. And then the results came और वो कि अब तो वापस पढ़ना पड़ेगा. तो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में. तो definitely, I mean, one big weight lifted off my shoulders, so now I'm enjoying all the moments that I can, because once you enter into the service, you'll be posted somewhere. हाँ, काम शुरू होगा फिर आपका काम शुरू हो जाएगा. तो अभी तो I'm meeting friends who grilled me for 2 years. You did not meet me because you kept saying your exams. That's how you compensate. That's how I compensate now. So I'm just
enjoying the little things in life. How's your parents? How are your parents? मतलब, how did they react? And how was it? So we are a very early to bed, early to rise वाला family. So what had happened was कि 18th को कोई भी expect नहीं कर रहा था कि result आएगा क्योंकि त्योहार था उस दिन. हाँ, पाँच कौन result declare करेगा इस दिन? So I did not check the website and I was on my way to go to sleep and then my sister-in-law video calls me and I have a small nephew so they never call me that late at night. So I got worried, okay, what happened? So then she called me. I'm like, तेरा हो गया, result आ गया, तेरा हो गया, जा नीचे जा, मम्मी पापा को उठा. मैं कहा 1 minute रुक जाओ, मैं तो अपनी पहले नेट में दो. So I looked at the PDF, I'm like, oh my god. I went downstairs, I didn't bang on the door. So we have 2 doors. So the secondary door, my parents knock in the night. So I kept banging on the door. So they thought somebody has broken into the house and they are after me, they're after my life. So they started panicking. कि भाई इसके साथ क्या हो गया अब जल्दी दरवाजा खोलो. So then my dad was like, hurriedly open the door. He said, क्या हुआ? Then the last thing he expected from my mouth is कि मेरा result आ गया, मेरा selection हो गया. So he also got confused for a second. He said, है क्या? I was like, result आ गया, मेरा selection हो गया. And afterwards, तो it's just okay. Celebration. बच्ची की सफलता आ गई, वो उसके पूरे she has made it. She was determined and she got what she wanted. हाँ, क्योंकि first generation lawyer वाली family में first generation judge बनना is a big deal. Thank you. But yes, I mean, all in all, very happy family right now. So, if you have any questions to ask Avani, आप पूछ सकते हैं. Yeah, most definitely. I think we've largely covered what Definitely, if you have questions, please go ahead. Any question? मैम Mike, please. मैम नोट्स कैसे बनाए जुडिशरी के लिए? See, आपको नोट्स नहीं चाहिए, आप खड़े क्यों करना. तो नोट्स बनाने के आपके ऊपर जैसे मैं इसको कैसे. So what I used to do is I would look at the BERAC and I would try to simplify the BERAC provision in my own language in my notes. क्योंकि BERAC से एंड टाइम में पढ़ना थोड़ा मतलब वो आपके लिए बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग काम हो जाएगा. सो योर एम विद योर नोट्स शुड बी हाउ फ्रेंडली आई कैन मेक देम फॉर रिविजन. सो आप BERAC पढ़िए, उसको सिंप्लीफाई करिए अपनी भाषा में और उसी में ही नोट्स चाहिए. और नोट्स आपके, मैं तो आपको बोलूँगी प्रेफर्ड है पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए और शॉर्ट हैंड में लिखिए क्योंकि उसमें सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए. आप पूरे मतलब कथा नहीं लिखेंगे आपके नोट्स में क्योंकि वो रेफरेंस बुक है जिसमें कथा लिखी हुई. तो आपके नोट्स में शॉर्ट हैंड में लिखिए, पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए और सरल भाषा में लिखिए. ऑब्वियसली कीवर्ड्स ओमिट नहीं करिए, जैसे कुछ सेक्शन में कीवर्ड्स होते ही हैं तो वो आपको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा. एंड अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसमें केस लॉज डेफिनेटली नीड टू बी एडेड. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट ऑफ लॉ पे आपके केस लॉज होंगे, कुछ नहीं भी होते हैं. तो डोंट पैनिक ऑन दैट. कैसा नहीं कह रहे, मैंने तो केस लॉज लिखे ही नहीं है इस पर, बट मेन टॉपिक से उस पर केस लॉज इनकॉर्पोरेट करिए और मोस्टली शॉर्ट हैंड में नोट्स लिखिए क्योंकि दैट इज़ योर बेस्ट अप्रोच. क्योंकि जब क्रंच टाइम आए ना तो आपको शॉर्ट हैंड ही हेल्प करेगा फॉर यू टू क्विकली रेफर टू देम. सो दैट्स इट. बाकी जो आपके लिए वर्क करता है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें. तो दैट्स व्हाट आई विल से. हाँ, कई लोग जैसे मैं भी जब नोट्स बनाती थी तो मैं अपने रेफरेंस के लिए बनाती थी. मैं उस हिसाब से नहीं बनाती थी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं यही कहीं लिख कर आ रहा हूँ. हाँ मैं नोट्स बनाई कि हर चीज़ है उसमें. हाँ करेक्ट राइट. तो वो छोटा छोटा पे हर चीज़ लिखी है. FIR डाइंग डिक्लेरेशन यस. So that's what it was essentially. कुछ टॉपिक्स में आपके नोट्स लेंथी बनेंगे बिकॉज देर इंपॉर्टेंट टॉपिक. टेस्ट डेडिकेटा में आपका नोट लेंथी बनेगा ही बनेगा, वो यू कैन नॉट अवॉइड दैट. सो ऐसा भी नहीं कि आप कट शॉर्ट कर रहे हो आपके नोट्स, बट दे शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू नॉट रेफर टू एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योर नोट्स. दैट्स योर अल्टीमेट एम कि आपको और कुछ बाद में रेफर करने की जरूरत नहीं. सो दैट्स व्हाट आई विल से. I have some questions. Yes, sir. जैसे अभी हम बच्चों को ये होता है, खासकर जो हिस्ट्री जाते हैं उन बच्चों के लिए होता है कि हमें केस लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है. किसी कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, एविडेंस यहाँ पर केस लॉ लिखते हैं. बट हम क्या हर सब्जेक्ट के लिए पढ़े केस लॉज? क्या हम रेफरेंसेस बुक को बहुत डीपली पढ़े, बहुत इन डेप्थ पढ़े? क्या वो हर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है? मतलब हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस और मतलब कैसे मार्क्स आपको मिल रहे हैं एग्जाम में? Okay. So first and foremost, case law हर आंसर में incorporate करना है is not something that is required.
क्योंकि आप लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो ज़रूरी नहीं है आपको हर कंसेप्ट के लिए केस लॉ मिलेगा, लेकिन ये है कि केस लॉ गिव्स यू एन एज इन योर आंसर. दिस इज समथिंग दैट इज इंडिस्प्यूटेबल. केस लॉ से आपका आंसर और अच्छा बनता है. सेकेंडली ये है कि रेफरेंस बुक को कंसेप्ट समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं कि आप कमेंट्रीज पे पढ़ लेते हैं. एमपी में कमेंट्रीज पे ज़्यादा जोर नहीं रहता है. दैट इज़ मोर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा आई बिलीव. बट ये है कि आप जो भी रेफरेंस में पढ़ रहे हैं उससे जब जिस कंसेप्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं यू शुड फुली अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट फ्रॉम दैट रेफरेंस बुक. ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि आप 5-6 रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हैं. बहुत बड़ा काम है वो, हर्क्यूलियन टास्क हो जाएगा वो. तो ये है केस लॉज. Like I said, that again, it depends on the demand of the question. So what is the asking? अगर आपको केस लॉ जैसे सपोज ये भी होता है एग्जाम हॉल में आपको केस लॉ याद भी नहीं आता है. डू नॉट पैनिक. इफ यू रिमेंबर द रेशियो, राइट द रेशियो. दैट वर्क्स इक्वली वेल इन इट. ज़रूरी नहीं है कि आपको केस लॉ ऐसा लिखना ही होता है. अगर केस लॉ को नाम में कन्फ्यूजन है then I would suggest not to write it, because if you write a wrong case law, that's I think that हाँ, वो इम्प्रेशन ही खराब कर देती है. फिर वो लगता है कि ये चीज़ गलत लिख रहा है तो फिर ये आगे भी चीज़ें गलत लिख रहा होगा. Exactly. कोई वर्ड टू वर्ड तो पढ़ता नहीं है. नहीं. वो उसी माइंडसेट के साथ ही. Right. I would just say write the ratio. Just say that in a case it was read, or if you remember that if it's the Supreme Court that has given that case, because generally एम यही होता है कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कोट करेंगे तो बेटर रहेगा. अगर एमपी हाई सपोज यूर टारगेटिंग एमपी, सो देन एमपी हाई कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट अगर आपको याद है और ये एमपी हाई कोर्ट का ही है, देन डेफिनेटली द ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट हैज सेड दैट. बट generally write the apex court or the honorable supreme court has said this. So definitely write the ratio. नहीं याद आ रहा है, कोई पैनिक की बात नहीं है. ज़्यादा कमेंट्रीज में मत घुसिए. कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन यू रेफरिंग टू सम 5-6 टेक्स्ट बुक्स एंड सारे उनके नोट्स बना के पूरा ऐसा बंडल कंपाइल करना. नॉट नेसेसरी. आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए एंड यू शुड हैव सफिशिएंटली material with you that you don't have to refer to anything outside of those material. That's about it. That's it. Second, any tips for paper 2 and paper 2 language and पेपर 2 के लिए आई थिंक ट्रांसलेशन पर तो मैंने काफ़ी आपसे इन डेप्थ डील करना था. ऐसे इसके लिए अगेन दैट्स द सेम थिंग. टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए, उस पर रिसर्च करिए. हाँ, फॉर वन थिंग आई वुड से लीगल टॉपिक पे जो आप ऐसे लिखते हैं उसमें केस लॉज इनकॉर्पोरेट करेंगे, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा. जैसे मैरिटाइम रेप का आई थिंक यू हैड वेरी लैंडमार्क आई थिंक 2-3 जजमेंट जो रिसेंटली आए थे. वन वॉज बाय दिल्ली हाई कोर्ट, वन वॉज बाय कर्नाटका हाई कोर्ट, एंड देयर वाज अनदर वन बाय केरला हाई कोर्ट एज वेल. So when you write this, it gives an impression that okay, this person is updated on current legal affairs. So legal के लिए आपको definitely से आप जो जैसा law के लिए preparation कर रहे हो वैसा legal essay के लिए आप prepare करेंगे तो it will be good for you. For essays, I would also say if you can try and incorporating quotes, then that gives a really good. Like I put quotes in both of my essays, and That's how you started this. exactly that gives you a bit of an introduction to your essay. And I actually quoted the Karnataka High Court that what the judge had said, that man is a man and woman is a woman. So I quoted that. So when you do all these little things, it gives you an edge over your other candidates, because ultimately यही आपको करना है कि आपका पेपर दूसरे कैंडिडेट से कैसा बेटर है. That's how you have to make your paper, because that's how you will beat everybody and come to the merit list. Ultimately, it's a fight that way only. So that is what I would say translations and built. And pressy writing is when you write judgments, you automatically somehow deal with pressy writing also. So मैंने personally इतना focus नहीं किया था pressy writing पे, but if you feel like I need to work on it, then pick up let's say newspaper पर कोई भी एक बहुत बड़ा article है, try to summarize that. और वो practice से ही आ जाएगा आपको. उसमें कोई मैंने dedicated practice नहीं करी. एंड जजमेंट राइटिंग इज अगेन लाइक आई सेड, पहले लॉ स्ट्रॉन्ग करिए फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस. इसका तो वही है. अगर आपको बुक जैसे मैंने रॉबिन जी तो कोऑर्डिनेटेड ऑप्शन भी जुड़े, उसका बस मैं यही कहूँगी कि उसकी जजमेंट्स काफ़ी लेंदी है, इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं. सो ट्राई टू कट शॉर्ट दोज जजमेंट्स ऑल्सो. एंड ऑब्वियसली क्लासेस आप यही रही तो वो क्लासेस की जो पॉइंट्स है और जो बुक्स में वो पॉइंट लिखेंगे, कि दैट बुक इज अ ग्रेट सोर्स फॉर केस लॉज विच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर जजमेंट राइटिंग. So Robinjeet Singh and I'm forgetting the second name, Insight into Judiciary, Judgment Writing. So that's also one book that you can refer. All right. Any question? Anything? गुड आफ्टरनून मैम. और मैम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम तैयारी करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस फेस करना होता है, तो करना पड़ता है या फिर
जैसे कि अपन MP जुडिशरी का दे रहे हैं, फिर उधर राजस्थान में हो गए, बिहार भी हो गए, उत्तर प्रदेश भी हो गए, तो ये सब का सिलेबस तो मोस्ट प्रोबेबली सेम रहता है या फिर चेंजेस उसमें हो जाते हैं? तो जब आप स्टेट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि वो स्टेट्स आइडेंटिफाई करें जिसके सिलेबस थोड़े मिलते जुलते हैं. जैसे MP और राजस्थान का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, एक्सेप्ट राजस्थान में थोड़े विमेन सेंट्रिक लॉज आपके और आता है जो MP में आने वाले हैं, जो MP में साथ आने वाले हैं अब, तो शायद आपका स्टैंड काफ़ी मैच हो जाए. अब जैसे MP के साथ छत्तीसगढ़ भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा जाता है, बट छत्तीसगढ़ का इशू ये है कि उसकी वैकेंसी बहुत फ्रीक्वेंटली निकलती नहीं है. तो आप लोगों को फिर ये स्टेट्स आइडेंटिफाई करना ऑब्वियसली, एक तो अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा हिंदी के अलावा कोई लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो देन यू कैन डेफिनेटली टारगेट दैट स्टेट, बट देन ट्राई टू गो फॉर स्टेट्स विद सिमिलर सिलेबस. क्योंकि मेरे साथ इशू यही हो रहा था कि हरियाणा, दिल्ली एंड MP, ये तीनों के मतलब हरियाणा एंड दिल्ली मैच, बट दिल्ली एंड MP एंड दिल्ली हरियाणा एंड MP डोंट मैच. तो उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट माने थे. सो इफ़ यू आर समबडी हु थिंक्स दैट ओके मैं ये दो डिफरेंट सिलेबस साइमल्टेनियसली आई कैन कवर दैट, देन डेफिनेटली गो फॉर द स्टेट्स. अदरवाइज आई वुड रेकमेंड कि आप जो सिमिलर सिलेबस है, सिलेबस सारे स्टेट्स के निकालिए विच यू हैव इन योर हेड, कंपेयर करिए कि इनके सिमिलर ने क्या मैं इनको साइमल्टेनियसली कवर कर सकता हूँ, कर सकते, एंड देन गो फॉर द स्टेट्स सजेस्ट दैट. ओके, थैंक यू. हेलो मैम, अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ और मेरा 10th सेम हो जाएगा. तो MP का तो अभी आप लास्ट सेमेस्टर में हो आपने कहा. हाँ, तो आपका बेटा तो आपका एम अभी यही है कि आप अपना जो जुडिशरी सेंट्रिक नोट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर कॉलेज नोट्स. ठीक है, कॉलेज में अपना एम क्या होता है, पेजेस भरना है अपन को, वो जुडिशरी में काम नहीं करेगा. तो योर नोट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स बिकॉज these notes that you make, these are your guiding light for the 3 subjects. क्योंकि आपको ये नहीं करना है कि मेरे जो नोट्स बने हैं मेरे को इससे और बाहर कहीं देने की ज़रूरत नहीं है. तो स्टार्ट पिक अप अ सब्जेक्ट विच यू फील लाइक ओके आई हैव नॉट रियली डेट इट दैट मच, मतलब मेरी मेमोरी बहुत फजी है इस सब्जेक्ट के लिए. So you start with that also. For example, I started with IPC first because मैंने first semester में किया था IPC, पेपर बिल्कुल याद नहीं था. So start picking up those subjects, start making the notes, and don't panic कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो रहे हो, पहला सब्जेक्ट आपको फुल ब्लैंक हो गया है, वो होता है. That is very natural. I think ma'am also spoke about it. But the key is that always. So your approach right now, because notification I think MP का कभी भी आ जाता है, right? So start, मतलब रुको नहीं बिल्कुल भी. जो आपका कॉलेज वर्क है वो तो है नहीं. वॉट एवर एक्स्ट्रा टाइम यू गेट, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, एंड ऑब्वियसली योर नोट्स शुड कवर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड जब आपको ऐसा लग गया कि मेरे यहाँ अब पढ़ाई नहीं हो रही, मैं थक गई हूँ अभी, स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज वो भी फ्री के लिए, मतलब वी नीड अ प्री फर्स्ट, राइट. प्री क्लियर करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स ही लगाने पड़ेंगे. एंड आई थिंक फॉर दैट यू हैव अमेजॉन पे सिंगल्स की एक बुक आ जाती है, बहुत ही पैक बुक है वो, और उसमें सारे स्टेट्स के हैं. आई वुड ऑल्सो येस दिस वन रिकमेंडेशन आई वुड गिव इज डोंट जस्ट स्टिक टू NP past year papers, start giving for all whatever states that are there in it, because MP's pattern is evolving, so they are also making slight changes in their papers. So I think for the past 2 years I saw a lot of, well not a lot, but I saw quite a lot of focus on case law based question and some conceptual based questions. So NP में generally आते नहीं थे. If you look at till the 2018 paper, it was largely merit based. But yeah, start studying objectives, start picking your notes, and keep updated. Download Live Law or Bar and Bench, whatever works for you, and just keep looking at the notifications. Because one thing I would also suggest is the recent case laws होते हैं, if you incorporate that also in your answers, it's not going to harm you in any way. Furthermore, it will also expand your knowledge and also show the examiner, okay, this person is also aware that legally in the current recently case laws क्या दिए जा रहे हैं, especially when you're on the Supreme Court. So I would say first of all, start reading your barracks, start making your notes. Okay. Any other question? मैम आप बैठ जाओ, अब खड़ी क्यों हो रहे हो, बैठ जाओ. हाँ, मैंने सुना था कि मतलब जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनका जो पेपर होता है वो ब्लैक पेज पे होता है. बड़े एग्जाम
जो मेंस का जो आंसर द ट्रेड के नहीं बाद मैम। हाँ, तो वो आई थिंक 2018 तक वही शायद पैटर्न था। एनपीके अगर मैं बोल रही थी नहीं था, नहीं अभी तो ब्लाइंड पे आता है। यूपी में ऐसा होता है कि यूपी में लाइट्स भी होती, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है रादर देन। हाँ, या बट एनपी में तो जो दोनों बार मैंने दिए हैं उसमें आपकी जो नॉर्मल आंसर द ट्रेड आती है वही आप मैम एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे है ना, मतलब जो मेंस का पेपर रहता है, जैसे कॉलेज में तो आधा चीज़ रहती है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगे हुए हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखे कि उसको कुछ एलोबरेट करने की नीड होती है? देखिए, आपका मेन एम है मेंस में क्वेश्चन जो पूछा है उसको आंसर करना है, क्योंकि जो पूछा है वो तो आंसर आपको करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास टाइम अगर है, आपने टाइम या अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो फिनिश कर लिया है, एंड इफ यू फील दैट ओके दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई नो विच हैज टू बी करेक्ट बाय द वे, आप मतलब श्योर 100% श्योर हो कि वो वही इन्फॉर्मेशन है, आपको लग रहा है तो दिस विल हेल्प यू, दिस इज रेलिवेंट टू द आंसर, डेफिनेटली इनकॉर्पोरेटेड। टाइम नहीं है उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज यू हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो टू सॉल्व। एंड मतलब मेन्स में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज यू हैव टू कंप्लीट द रिविजन, क्योंकि पेपर छोड़ना, एंड एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ 21 के पेपर में हुआ है कि उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया, बिकॉज व्हाट दे डिड वाज द 8 मार्क ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वाज स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। सो that's how, like I said, when I said the MP is evolving its paper, that's how they are incorporating different things. So they're breaking away from the past year papers. आप अगर आप देखेंगे और आप 2019 फेज 2 और 21 का पेपर कंपेयर करेंगे from all the rest of the past year papers, आप देखेंगे MP had followed a very stagnant pattern and now it's changing the pattern. So अब ऐसा है कि एग्जाम हॉल में आप कितना क्विकली उसको अडेप्ट कर पाना है, जो पेपर आपके सामने है और जो उनसे जो आपसे पूछा गया है वो आंसर करिए, बेटर यही रहेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है नीचे, नई टाइप है मत चीज। थैंक यू मैम। Good afternoon, respected ma'am. I want to ask if we want to create in the barrack. People said कि before you learning the barrack, you can read out the index completely. For example, 499 to 5, I think 499 to 502, I think defamation is. So people said you can read out the index properly before read the barrack. Then you can click in your fingers. This thing is really helpful for the. मैंने ये टेक्निक तो फॉलो नहीं कर, बट अगेन ये सब्जेक्टिव है। अगर आपके लिए काम कर रहे हैं आप कर दीजिए। इंडेक्स बेस्ड आपको तब काम में आता है, इंटरप्रीनियर्स को बहुत काम आए, ठीक है। सब तब वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही उठा के आपसे पूछ लेते हैं, तो जब आप इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। मेंस में भी यस प्रोविजन लिखना ज़रूरी हो जाता है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो आपको बताना पड़ेगा कि इस सेक्शन का है, इस एक्ट में। मैंने ये टेक्निक फॉलो नहीं करी थी। अगर आपको ये सूट कर रही है तो आप करिए, वरना आई डोंट रियली फील दैट इट्स रिक्वायर्ड यू नीड टू फर्स्ट लर्न द इंडेक्स एंड देन गो टू द बैरक। आई डोंट थिंक दैट्स, क्योंकि आप पता है जब पढ़ रहे होते हो ना, जब आप डेफिमेशन की जैसे हम बात करें, जब आप डेफिमेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता है ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती है कि अच्छा इसके बाद था ये और इसके बाद ये वाला प्रोविजन था, इसके बाद मैंने ये पढ़ा था। डेफिनेशन के बाद वो क्रिमिनल डिटर्मिनेशन आता है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो दैट्स व्हाट आई से, व्हेन यू डू रिवीजन, राइट, रिवीजन में फिर आपको फिर इंडेक्स पे इतना जोर देने की जरूरत है, वो अपने आप याद होता जाता है। इंडेक्स यूज आप वो बाय प्रोडक्ट है, हाँ, इंडेक्स यूज आर वेरी हेल्पफुल बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो जब आपके पास क्रंच टाइम होता है और आपको सेक्शन बेस याद नहीं आ रहे, तो आप वो इंडेक्स की, आई थिंक दैट्स व्हाट दे रेकमेंड ऑल्सो, कि आप इंडेक्स की ज़ेरॉक्सेस लीजिए और सिर्फ उसको ही पढ़िए, तो सेक्शन बेस आपके उससे मेजॉरिटी सॉल्व हो जाते हैं। बट लाइक आई सेड, नाउ एमपी इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम बैरक बेस्ड पेपर्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग कंसेप्शन बेस्ड, लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हेल्पफुल है, बट वो इतना उस पर जोर देने की आई डोंट फील ज़रूरत है। तो जैसे इंडेक्स नोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो बैरक में से इंडेक्स की फोटोकॉपी करवाई और उस सेक्शन में जैसे कोई केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जैसे 34 है, तो 34 में बरेंद्र कुमार घोष का केस इंपॉर्टेंट है, तो वही छोटा छोटा लिख लो चाहिए, ताकि 34 में अगर कुछ भी आ गया तो आपको 34 क्या है वो भी याद है, उसके ऊपर केस है वो भी तुरंत याद आ गया। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। मेंस में आपको ये इतना एवेड करेगा, मेंस में तो आपके जो एक्सटेंसिव नोट्स हैं वही काम आने वाले हैं, और खुद के नोट्स काम पाते हैं, याद भी काफी नहीं याद। And my second question is that कि मतलब during the
of preparation, then we can solve the previous PYQ. It can be helpful. यस डेफिनेटली आपको सॉल्व करना ही है, मतलब उसका कोई वर्क नहीं है, वो आपको सॉल्व करना ही है. एंड लाइक आई सेड, सेम पास्ट ईयर जो आप स्टेट टारगेट कर रहे हैं उसी पास्ट ईयर के पेपर्स पे फोकस मत करिए. ट्राई सॉल्विंग अदर स्टेट पेपर्स ऑल्सो. तो इसलिए मैंने वो सिंगल्स की जो आपको बुक बताई है वो काफ़ी सारे उन्होंने स्टेट्स की कंबाइन करती थी वो बुक बनाई है. तो वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ओके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे कैसे चल जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा आई थिंक फॉर एग्जाम्पल जब आप अटकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिस सेक्शन, उसमें मैं अक्सर अटक रही थी. और वो कैसे मैंने उसको ओवरकम किया, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. और रीड द क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली तब करोगे जब आप मल्टीपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे. तो वो तो आप भले ही आपका पूरा मतलब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड द एंटायर 12 सब्जेक्ट वंस मे बी ट्वाइस, नाउ यू थिंक ओके एक बार पढ़ने के बाद भी यू फील दैट ओके आई नीड टू रिवाइज मोर. नो, आई वुड रेकमेंड यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स. एक बार पढ़ लिया है रीडिंग, भले ही आपके आंसर थोड़े गलत भी जाएंगे बिगिनिंग में, उससे आप डिसहार्टन मत होइए क्योंकि आपका स्कोर थोड़ा कम साइड में आएगा बिगिनिंग में बिकॉज यू जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन. बट यू विल स्टार्ट, एक तो आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी, नंबर 1. नंबर 2 इज कि आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एंड व्हेन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो आपके लिए सॉल्व करना आगे जाकर बहुत ईजी हो जाएगा. सो साइमल्टेनियसली स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. Start. I on. मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किया और कॉलेज भी मैटर करता है और विच कॉलेज बेस्ट. Okay. So I have done my bachelor's in psychology first, and thereafter I went for a 3-year LLB program in ILS Law College, Pune. Right? तो कॉलेज इतना मैटर करता है? आई डोंट थिंक सो बिकॉज यू जुडिशरी में तो जुडिशरी में नहीं करता है बिकॉज यू हैव पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम NLUs, you have people who are coming from non-NLU colleges as well, and it does not make a difference at all. मैंने तो इन लोगों की जो मार्कशीट देखी, मैंने आधे ज़्यादा कॉलेजेस के नाम सुने भी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब मेरा कॉलेज डिसाइड, आई एम प्रीटी श्योर किसी ने ILS का भी नाम नहीं सुना होगा. सो डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर. और वैश्विक के लिए इतना मैटर नहीं करता. लेकिन जो लोग लॉ स्कूल जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अच्छा कॉलेज चूज़ करें. उसका रीज़न ये है कि अभी आपको लग रहा है कि आपको जुडिशरी में जाना है, बट योर प्लान्स माइट चेंज. तो अगर आप प्लान चेंज कर सकते हो तो आपको फिर वो प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है. करेक्ट. एंड लाइक इफ यू गो टू कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, वहाँ पे एनालिस्ट का जोर ज़्यादा होता है, स्पेशली व्हेन यू आर टारगेटिंग Tier 1 लॉ फर्म्स एंड वही. तो NLU में जाके फिर आपको हो ये जाता है कि फिर आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं. आप जुडिशरी की तो कर ही सकते हो, वो जो एक ऑप्शन है ही, साथ में आप कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. फिर गिव्स यू मोर ऑप्शन. बट जुडिशरी स्पेसिफिकली, जुडिशरी के लिए कॉलेज डज नॉट मैटर. they will just check that you meet the minimum requirement. And आपके पास LLB की डिग्री है, then college doesn't matter. Alright. So thank you so much, Raika bhai.